So past continuous structure is subject plus was, were plus verb one ing plus object. It was raining yesterday. Negative sentence subject plus was, were plus not verb का ing form plus object. And question was, were subject verb one ing plus object. All right. So वर यूज होता है यू दे वी और सारे प्लूरल के साथ. द स्टूडेंट्स, द लीडर्स. एनी एग्जाम्पल? और कुछ और क्या हो सकता है? he, क्या? sir, he, she, द he, ही के साथ वर्ब कैसे यूज होगा? नो, ही के साथ वॉज होगा ना यूज, सिंगुलर. तो वर यूज होता है yes, प्लूरल के साथ. प्लूरल, अनेक वचन. यू, दे, वी, the students, the boys, the girls, the teachers, the leaders, उन सब के साथ. ठीक है? क्लियर? sir. Oh, अच्छा, राम के साथ क्या यूज होगा? राम was, was, was. Okay, good. Okay, now let's go quickly to the rules. Rules. Okay, rule number 1. Okay, rule number 1 is, Raj, can you read the rule number 1? good number one. Lot of disturbances coming. Nishikant, can you read rule number 1? talk about an action that were happening or in progress at a particular point of time. Very good. भूतकाळातील एखाद्या विशिष्ट वेळी घडणाऱ्या किंवा प्रगतीपथावर असलेली गोष्ट, असलेली Yeah. क्रिया. Okay. समझ में आया? Is it clear? तो हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करेंगे करते हैं इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जो एक विशेष टाइम पे होता है, मतलब पुराने टाइम में होता है, पास्ट टाइम पे होता है, पीछे के टाइम में होता है, या उस टाइम पे चल रहा था एक पर्टिकुलर टाइम पर. ठीक है? आरती जी, क्लियर? Yes, sir. Can you read it once again for everybody? Rule number 1. सर नीलम, Okay, नीलम जी, start. सर पहिल्यापासून स्टार्ट करू. पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स स्ट्रक्चर प्लस वी सेंटेन्स. No, फक्त रूल. फक्त रूल. And English मध्ये सांगा प्लीज. Try to speak with me in English. Yes. सर कोणतं पहिल्यापासून सांगायचं की रूल सांगा. रूल. टू टॉक अबाउट एन एक्शन that were happening or in progress at a particular points of time. Perfect. एक क्रिया जो अतीत में किसी विशेष समय पर हो रही थी या प्रगत पर थी. Okay. भूतकाळ एखाद्या विशिष्ट वेळी घडणाऱ्या किंवा प्रगतीपथावर असलेल्या क्रिया. Everybody is clear now? Okay, let's have example. It was raining cats and dogs yesterday. Cats and dogs म्हणजे? मांजर आणि कुत्रा. Surat. So cats and dogs.
एक phrase, this is a phrase that means जोरात, भरपूर. ओके, जब बारिश बहुत जोर से होती है तो हम cats and dogs बोलते हैं. ये cats and dogs. ठीक है? It was raining cats and dogs yesterday. So yesterday is a particular point of time, right? Past tense. It was raining yesterday, not today. दूसरा example, she was reading a book in the morning. So right now it's evening, but she was reading a book in the morning. तो हम पुरानी बात कर रहे हैं, बराबर? तो पुरानी बात करेंगे. Okay, Omkar had throat infection, no problem. Take care. So you got it? समझ में आया? She was reading a book in the morning. अभी evening है, right? वो सुबह की बात कर रही है, इसलिए was reading. वो सुबह में किताब पढ़ रही थी, अभी नहीं पढ़ रही है, सुबह में पढ़ रही थी. सकाळी वाचत होती, whatever. Clear, madam? Clear, sir? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now can you give me some examples? Can you give me some examples? Sir, Raj. Yes, Raj. Cricket in the yesterday. आवाज नहीं आई राज. He was playing a cricket in the yesterday. He was playing A cricket और क्रिकेट in the नहीं, yesterday. क्रिकेट और क्रिकेट नहीं होता ना, और बैट हो सकता है. ठीक है, क्रिकेट एक गेम है, उसको और क्रिकेट नहीं बोलेंगे. He was playing cricket. ठीक है, जब हम किसी चीज को गिन सकते हैं ना राज, तो हम अ लगाएंगे या एन लगाएंगे. तो क्रिकेट एक गेम है, उसको हम नहीं गिनते. एक क्रिकेट खेला, दो क्रिकेट खेला, ऐसा नहीं बोलते हैं. एक मैच खेला बोल सकते हैं, राइट? एक क्रिकेट खेला, दो क्रिकेट खेला, ऐसा नहीं बोल सकते ना. एक बैट लिया, एक बॉल लिया, वो बोल सकते हैं. हम क्या बोलेंगे? He was playing cricket yesterday, right? Right? Okay, sir. Sir, Very good. Yes. Who is now? Sneha. Yes, Sneha ji, come on. Shyam was working in a garden yesterday. Who is working? Shyam was working in a garden yesterday. Okay, he was working in the garden yesterday. Very good. So yesterday is very important because time is there. Yes, Neelam. She was watching a TV in the morning. She was watching TV in the morning. Yes, very good. Watching. हाँ, watching TV in the morning. बराबर. हाँ. वॉचिंग टीवी बोलेंगे, वॉचिंग और टीवी नहीं बोलेंगे. वॉचिंग टीवी बोलेंगे हाँ. तो खरीदने वाला बात हो जाएगा. टीवी देख रहे हैं ना, हाँ. तो वॉचिंग टीवी हाँ. सिर्फ. ओके. Yes. यस, आरती जी, शुभम, निशिता, Sir Shubham. जी. ओके शुभम, यस. Sir Shubham. I was eating rice in the morning. आई वाज ईटिंग राइस इन द मॉर्निंग. राइस को नहीं गिन सकते ना हम लोग, इसके लिए ए नहीं लगाएंगे. आई वाज ईटिंग राइस इन द मॉर्निंग. I was eating rice in the morning. वेरी गुड. आई वाज ईटिंग चपाती इन द मॉर्निंग. आई वाज ईटिंग राइस इन द मॉर्निंग चलेगा. आई वाज ईटिंग एन एप्पल इन द मॉर्निंग बोलना पड़ेगा कि एप्पल को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, राइस चपाती को हम लोग नहीं गिनते हैं, उसको बोल जाते हैं. तो आई वाज ईटिंग राइस इन द मॉर्निंग. वेरी गुड. यस. नाउ अश्विनी जी, वेयर आर यू? एंड आरती जी. Yes, sir. Aarti ji and Ashwini ji, come on, two friends. Yeah. She was working in the morning. So Jhala. Next. Hello? Okay. She was. She was what I was. Sir, Aarti was. I was. Acha. Yes.
Aarti was, I was. I was making a breakfast in the evening. I was making breakfast in the evening. Okay. बराबर. I was making breakfast. I was cooking food. हाँ, उसको वहां पे ए नहीं लगाएंगे. तो जिसको हम काउंट करते हैं ना, वहां पे ए एन लगाएंगे. ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, उस वहां पर हम ए एन लगाएंगे. So I was ब्रेकफास्ट को एक दो नहीं बोलेंगे ना, एक ब्रेकफास्ट बनाया, दो ब्रेकफास्ट बनाया, ऐसा नहीं बोलते हैं. ठीक है. So I was making breakfast in the morning. Very good. Yes, Ashwini ji. I was winning the match yesterday. I was winning the match yesterday. Okay. थोड़ा सा ठीक है. It will come in second rule, but सही है. ऐसा grammatically there is no problem. Grammatically सही है. Okay, I was winning the match yesterday. So I think it is clear. Now shall we move to new rule? Next rule. Yes, sir. Okay. Second rule is unfinished or ongoing action plus finished action in the past. Rule number 1 में क्या था कि एक particular point of time बहुत important था. ठीक है. Yesterday I was doing it. Morning में I was doing it. So yesterday, morning, tomorrow, day before yesterday, these were time was there. ठीक है. तब मैं पुराने टाइम पे कर रहा था, वो था. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड रूल क्या है? अनफिनिश्ड और ऑनगोइंग एक्शन प्लस फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इथे दोन एक्शन आहे. वन अनफिनिश्ड म्हणजे चालू एक्शन प्लस फिनिश्ड एक्शन, संपला एक्शन. राइट? ओके. So now let me invite Neha ji to read the second rule and समझाइए हम लोग को. Second rule. Unfinished or ongoing action plus finished action in the past to express an action that was going on at some time when something else happens. एक क्रिया else happen. एक क्रिया जो किसी समय चल रही थी जब कुछ और हुआ था, अशी क्रिया जी कधीतरी चालू होती तेव्हा काहीतरी घडले. मतलब क्या है कि इस रूल में हम दो एक्शन की बात करते हैं. याद रखना, पास्ट कंटिन्यूअस में जब सिंगल एक्शन होगा तो टाइम जरूर होगा वहां पे, या फिर दो एक्शन होगा और एक एक्शन चल रहा था और एक एक्शन खत्म हो गया. समझ में आया? दो एक्शन. जैसे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन यू केम. आई वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन यू केम. क्या बोल सकते हैं इसको? मी मूवी वाचत पाहणार जेव्हा तू येशील. हाँ, तू येशील. okay. Sorry. So I was watching a movie when you came. So when you came क्या हुआ? एक एक्शन ये हुआ, पहला एक्शन, बराबर. और ये क्या हुआ? दूसरा एक्शन, you came. So you came is second action और this is one action. इसमें पहला एक्शन कौन सा था? पहले कौन सा हुआ? Watching. ओके. तो वॉचिंग वाज चालू था, बराबर. ऑनगोइंग एक्शन था ये. और एक फिनिश कौन सा हो गया एक्शन? व्हेन यू कम, मतलब जब तुम आए. तो ये फिनिश हो गया, राइट? तो फिनिश हो गया को हम कैसे लिखते हैं? हम क्या रूल है यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस V2. फिनिश्ड एक्शन में हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस V2. केम इज V2. दैट इज सिंपल पास्ट. और ये क्या है? कंटिन्यूअस. आई वॉज वॉचिंग.
तो जब भी दो एक्शन रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दो एक्शन रहेंगे, तो एक एक्शन रहेगा कॉन्टिन्यूअस में और दूसरा एक्शन रहेगा सिंपल पास्ट में। तो जो खत्म हो गया वो सिंपल पास्ट में और जो चालू था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो yesterday when I was winning the match, then she cheated. Correct? Okay, second example is she was cooking in the kitchen when the doorbell rang. She was cooking in the kitchen. कौन सा एक्शन चालू था? Ongoing एक्शन कौन सा था? कुकिंग चालू होती जेव्हा डोरबेल रैंग। और कौन सा एक्शन खत्म हो गया? फिनिश्ड एक्शन। Doorbell rang. रैंग मतलब घंटी बजी, टंग, खत्म। ठीक है? तो ये एक्शन खत्म हो गया। जो एक्शन खत्म हो गया उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल पास्ट में। और जो एक्शन चल रहा था कॉन्टिन्यूअस में। ये समझ में आया आप लोग को? डिड यू गेट इट? समझ लो। थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्या? थोड़ा डाउट था कि क्लियर था? सर हाँ। नीलम। यस नीलम जी। सर यस नीलम जी बोलिए। नीलम जी सांगा, आई एम हियर। हेलो, your voice is not coming. Okay, so any examples? Raj. Okay, one more thing. Past continuous के साथ आपको simple past mostly दिखेगा, mostly. ठीक है? Yes राज। He was playing the cricket in the ground when she went. When she went. सेंटेंस तो सही है राज, थोड़ा लॉजिक सही नहीं लग रहा है इसका ना। फिर से बोलो एक बार। She was playing the cricket in the ground when she came. She was playing cricket in the garden when She came. कौन came? दोनों में she है तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, कौन आया कौन गया, कौन खेल रहा था कौन गया। हाँ, sorry. When he came. हाँ अब चलेगा। She was playing cricket in the garden when he came. बराबर, वेरी गुड, सिंपल, बढ़िया था। ओके, यस नीलम जी, आरती जी। सर अश्विनी। यस अश्विनी जी। सर सेकंड नंबर रूल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा आवाज ही नहीं आई। ओके अश्विनी जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन रूल नंबर 2? यस सर। चलो इसको शुद्ध मराठी में समझाइए आप। अनफिनिश और एक्शन एंड फिनिश एक्शन इन द पास्ट। अशी क्रिया जी कधीतरी चालू होती जेव्हा कधीतरी घडेल। वी कैन यूज इन दिस रूल। एक्सप्लेनेशन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया।
2 actions were there. There are 2 actions. 2 actions हैं वहां पे. एक चल रहा था हाँ, और एक खत्म हो गया उस टाइम पर, खत्म हो गए. है ना. तो देखो 2 एक्शन है. मैं मूवी देख रहा था, उसमें तुम आ गए. मैं खाना बना रहा था, तभी घंटी बजी. राइट. ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, लेकिन एक खत्म हो रहा है और एक चालू ही है, एक चल ही रहा है. साथ तो इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? तो एक क्रिया चालू एक होती जेव्हा आणि अनदर एक क्रिया संपलं. समथिंग लाइक दैट. संपणार होती. ओके. करेक्ट ना? यू गेटिंग माय मैसेज? एक एक्शन चल Yes, रहा था और एक एक्शन खत्म हो गया. तो खत्म हो गए. घंटी बजना खत्म हो गया, लेकिन कुकिंग चालू है ना. तो Yes. तो सपोज अश्विनी जी खाना बना रही है घर पे, पूरन पोली बना रही हैं बस, और तभी घंटी बजाया. हाँ. आरती जी ने घंटी बजाया, टंग टंग. तो अश्विनी जी क्या करेंगी? कुकिंग छोड़ के मैं डोर पे एग्जैक्टली मैं हाँ, यही होता है. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होता है कि एक एक्शन जो खत्म होता है ना, वो दूसरे जो चल रहा था एक्शन उसको डिस्टर्ब करता है. याद रखना है इसको. शी वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन द डोरबेल रैंग. तो उसने आपको डिस्टर्ब किया, इन्फ्लुएंस किया बोल सकते हैं. ठीक है. तो 2 एक्शन साथ में होता है, एक खत्म हुआ, एक चालू था. ओके, फिनिश. यस, आप एक बार प्लीज समझाइए once again so that नीलम जी and everybody else can get it. अश्विनी जी, your turn. yes. मराठीत सांगू सर. Yes. आपण जेव्हा एक क्रिया चालू असते आणि दुसरी घडणार असते, तेव्हा आपण पहिली क्रिया सोडून दुसऱ्या क्रियेकडे जातो. हे 2 रूल आपण यूज करू शकतो. काहीतरी चूक झाली. The meaning was not very clear. Okay, chalo, you explain in English. Try to explain now in English. This is English class and today we are having 15th day. सिर्फ 6 दिन बचे हैं. So we have to speak in English. Come on, Ashwini ji. This time explain the rule in English and everybody will understand it. Come on. Unfinished or ongoing action plus finish action in the past. जो जी आता क्रिया चालू आहे, तिला संपवून आपल्याला दुसऱ्या क्रियेकडे आपण दुसऱ्या क्रियेकडे वळतो. No Marathi, no English. No. English. Okay. We can see the example. I was watching movie when you come. Came, not come, then, came. Okay, came. Then first action, I was watching movie. I finished this action and I go to the next action when you came. Okay, good try. Good try. So ठीक है. नीलम जी समझ में आया? Did you get it? Okay, Omkar ji is today his problem. He cannot speak. So now let me try once more. Raj, can you try? Raj, are you there? Nishikant, are you there? Shubham. Okay, so let me see कि कौन कितना अच्छे से समझे. I'm just checking. Yes, Shubham. I was eating a mango when you come. कम नहीं रे, कम किधर है? Came ना, past tense. We are in past tense, Baba. No present tense here. Yes, I was eating a mango when you came. हाँ, बराबर. Very good. Very good. Okay. Now, Nishikant, are you there?
नीलम जी आपको समझ में आया? डिड यू गेट द मैसेज? नीलम जी, यू गेट इट? मैसेज आया समझ में? Oh my God, we have only 4 minutes left now. So I'll send you another link when it comes. Okay, Ashwini ji, your example. Yes, sir. Yes, give me the example. The wolf was running in the forest when he saw the hunter. Okay, good. Good. Yes, Aarti ji, your example. Yes, Example is sir. right. Yes, ma'am. I was working when my friend came. Sorry. When my friend came or when my friend called you. I was working when my friend called me. That is also correct. Okay, very good. Neelam ji, can I have one example from your side? Okay, she's not listening. Sneha ji, your example? Yes, I was completing a project when you called me. Very good. Okay, now Nishikant is not there, na? Okay, wonderful. So once again, two rules, दो रूल है इसमें. एक होता है, एक क्या बोलता है कि एक खास टाइम पर, एक विशिष्ट टाइम पर कोई एक्शन हो रहा था, बस इतना ही. Yesterday it was raining. Fine. दूसरा रूल क्या है? उसमें दो एक्शन रहते हैं. एक एक्शन चल रहा था और एक एक्शन तुरंत हो गया और तुरंत खत्म हो गया. ठीक है? जैसे कुकिंग, जैसे अश्विनी जी कुकिंग कर रही थी और आरती जी ने घंटी बजा दी. So Ashwini ji was cooking in the kitchen when Aarti ji rung And the the bell. doorbell. हाँ. Yes. Or knocked at the door. When Ashwini ji was cooking in the kitchen when Aarti ji knocked at the door. ठीक है? Okay. Okay, wonderful. So time कितना बचा है? Oh, we don't have much time. So I'll send you another link. And Okay, sir. you have to join in that link. So meanwhile, let me move fast. Yeah. Let's have a comparison to understand जो हमने सीखा है present simple, past simple, present continuous and past continuous. That ये आपको एक insight देगा कि कैसे हमको use करना है. So who is coming to my house? ठीक है? Okay, so let's talk about present simple, past simple, present continuous and past continuous. Present simple और past simple में क्या difference है? What is the difference between present simple and past simple? प्रेजेंट सिंपल में डू और डज Okay. और फर्स्ट वर्ब. पहले मेरे को स्ट्रक्चर बता. प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? एस प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. डू डज प्लस V1 दोनों कैसे हो रहा है? S Sorry, प्लस sir? V1, S प्लस V S E S ना? यस. S प्लस V1 VSES. S E S प्लस ऑब्जेक्ट. Object. S प्लस V1 S E S इतना याद रखते हैं. और सिंपल पास्ट में क्या था? S प्लस